So hello class 12th. I hope you have started your chemistry preparation for your next chemistry exam. So here we are going to discuss a brief discussion, a brief strategy for your next exam. So we have total 10 chapters. Within these 10 chapters, how we have to go within these 3 days, upcoming 3 days. So first, briefly we will discuss how we have to go. Okay, so our first chapter is solution. So in this chapter solution, basically first we have to deal with the concentration terms. Okay, so these concentration terms we will discuss. Basically concentration terms are of two types. Okay, one is temperature independent and one is temperature dependent. So those which are temperature independent are percent by mass. Okay, next is mole fraction and molarity as well as parts per million, but here only we will discuss some brief. So you have to prepare percent by mass means percent W by W, next percent W by V, molarity, molality and parts per million. So this will also help you for some next numerical problems. So next we have to prepare Henry law as well as the Raoult's law, their definition as well as their application also. Like Henry law application is very important for your upcoming examination. So after this we will discuss ideal and non-ideal solution. You have to prepare ideal solution, non-ideal solution. Please prepare the definition as well as the example. So here I have tried to discuss like non-ideal solution. Okay, ideal solution there will be some examples. आपको examples दिए होंगे और बोलेगा कि which of the following is an example of ideal solution, like benzene plus toluene, chlorobenzene, bromobenzene, ethyl bromide, iodide, ethyl alcohol plus methyl alcohol. Similarly non ideal solutions जो है उनमें आपको दिया रहेगा तो इसमें टू टाइप्स के होते हैं, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले. So these examples carefully you have to remember it. Okay, anyone can be given. You have to select which of the following is an example of non-ideal solution showing positive deviation. So for example, acetone plus benzene is the example of. You have to write this is a non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law. Okay, please prepare Henry law, Raoult's law, their definition as well as application part. Next, ideal and non-ideal with these examples. Please do graphical representation also. Okay, next you have to prepare azeotropic mixture. This will be 1 mark. Next, colligative property, very important. There are four colligative properties. One by one you have to prepare it. Their formula, please prepare the formula as well as there will be one numerical question from that. So please prepare one numerical question also. Next you have to prepare abnormal molar mass. Okay, one question will be from here also, abnormal molar mass, and next is want of factor. तो want of factor में दो केस होंगे, एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन. तो एसोसिएशन का फॉर्मूला I is equal to 1 minus alpha plus n alpha, and dissociation is I is equal to 1 plus alpha into 1 upon n minus 1. So this is the case of dissociation, this is the case of association. These two are the chemical kinetics part. नेक्स्ट प्लीज रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको प्रिपेयर करें प्लीज सॉल्युबिलिटी से एज वेल एज ऑस्मोसिस से. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाता है, पाई इक्वल टू CRT. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चारों हैं उसमें वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड भी करिएगा फॉर्मूले में. फॉर एग्जांपल डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. अगर वांट ऑफ मतलब फैक्टर इंक्लूड होगा तो डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M. ठीक है, ये कर लेंगे आप. नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में सॉल्व एग्जाम्पल करने प्लस कुछ NCERT के एग्जाम्पलर्स, मतलब इंटेक्स के क्वेश्चन प्लस सॉल्व एग्जाम्पल, ये करके चले जाइएगा. एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर जो आपके पास क्वेश्चन है वो लगा लीजिएगा. 1 मार्क्स में एक छोटा सा टॉपिक छूटता है इसमें, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. ठीक है, ये सॉल्यूशन का कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है 1 मार्क्स में, तो प्लीज़ इसको भी आप लोग रेफर करके चलेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन पार्ट. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको छूना है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से कर ले प्रिपेयर विद द फॉर्मूला एज वेल एज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग वांट ऑफ फैक्टर. तो दोनों केस ध्यान में ये रखने, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, और साथ में कुछ सिंपल से आपको डेफिनेशंस प्रिपेयर करके जानी है NCERT से.
ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे चलेंगे. बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वन इज गैल्वेनिक सेल. ठीक है. तो गैल्वेनिक सेल जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं. तो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ये करेगा. एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस होगी. तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से कुछ मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी. सो इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स. वेर एज गैल्वेनिक सेल के अंदर या वोल्टिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. मीन्स दिस इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि सेल रिएक्शन को देख के सेल लिखना और सेल को देख के सेल रिएक्शन वो आपको आना चाहिए. तो इसमें एक सेल का नोटेशन होता है, लोन मेथड भी बोलते हैं उसको. तो लेफ्ट ओ ऑक्सीडेशन, ए एनोड नेगेटिव चार्ज. तो सेल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए. सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस को देख लें. साथ में कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ क्या होता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या जो मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो भी कई बार पूछ लेता है. उसके नोटेशंस एनोड और कैथोडिक रिएक्शंस वो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर लें. साथ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इससे कुछ डेटा देके कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, पिछले 2-3 साल से पूछ रहा है. तो उसमें आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने, जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. एज वेल एज जो रिड्यूसिंग पावर होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो यहाँ से किसका ऑक्सीडेशन कुछ वैल्यूज आपको दी रहेंगी नोट की, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा. तो प्लीज़ पीवाईक्यू से चेक कर लें, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. और जो इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, उसमें आपको क्या करना है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि पहले ही भी आप इसको मतलब जानते हैं, ये कर लें प्रिपेयर. कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लाइक आपका मतलब रेसिस्टेंस है, मतलब कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक जो मतलब रेसिस्टेंस है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग आगे करेंगे डिस्कस, उनको बहुत अच्छे से देख के जाएंगे. एंड कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है विद देयर यूनिट्स. ठीक है. कप्पा इंटू 1000/n मोलर कंडक्टिविटी है, कप्पा इंटू 1000/n क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है. दोनों के बीच में रिलेशन देख लें, इंपॉर्टेंट है. लैम्डा एम अपॉन वी एफ ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन होती है, डीवाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन. हालांकि कई बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता बट इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार. लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी. इतना करने के बाद आप नेक्स्ट चलेंगे कोलराउस लॉ. इसका ग्राफ भी प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ग्राफ भी देख के जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. और इसका एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कोलराउस लॉ का. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाता है यहाँ से. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट मतलब कंडक्टेंस किसी भी मतलब कंसंट्रेशन पर, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट जो मतलब डाइल्यूशन है वहाँ पे लेते हैं. तो दोनों के रेशियो से अपन ना डीओडी निकल जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा बोलते हैं. एज वेल एज डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकल सकता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जो कि इंपॉर्टेंट है. साथ में आप लोग कोरोजन और उससे प्रिवेंटेशन की कुछ टेक्निक्स है वो देख लें. प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का. ठीक है. तो जिसमें आपको क्या करना है, सेकेंडरी बैटरीज में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है, इसको बिल्कुल पढ़ के जाएंगे. एनोड लेड का बना होता है, कैथोड लेड डाइऑक्साइड का है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड. सिमिलरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, इसका एनोड होता है पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट जिससे हाइड्रोजन पास होती है, और कैथोड होता है जिससे ऑक्सीजन पास होती है. प्लीज इसको कवर कर ले बहुत अच्छे से. और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है NaOH का एक्वस सोल्यूशन होता है. ठीक है. तो ये हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है. इसके बाद इलेक्ट्रो में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रो में कुछ फॉर्मूले जो मैं आपसे बोल रहा था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंपॉर्टेंट है, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो एल अपॉन ए इंटू आर, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी. प्लीज ध्यान रखिएगा इनका यूनिट सेंटीमीटर में लेते हैं हम हमेशा. ठीक है. तो मीटर में दिया हो तो प्लीज कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. साथ में फेराडे फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से होगा, W इज इक्वल टू ZIT लगा देंगे, W जानते हैं आप लोग. सेकेंड लॉ W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 E1 अपॉन E2. कब, जब Q सेम हो, मतलब सेल्स आपके मतलब सीरीज में मतलब कनेक्ट हो. तो ये आप लोग कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से. उसके बाद नेक्स्ट नर्स्ट इक्वेशन जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 P अपॉन आर. नर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट 5 मार्क्स में आएगा.
जिसमें 3 मार्क्स में आपको मिलेगा ये नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, और 2 मार्क्स में मिलेगा कुछ यहाँ से इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब डेल्टा जी से रिलेटेड, माइनस एन एफ ई सेल, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बोल देगा, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर लें। एनसीईआरटी इंडेक्स लगा लेंगे, सॉल्व क्वेश्चन कर लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत जल्दी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का आपका लास्ट मतलब चैप्टर होगा। इसमें आपको क्या करना है, अप्रोच प्रिपेयर सम डेफिनेशंस, तो उनको एग्जांपल के साथ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे जल्दी से। लाइक एवरेज रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है, और रेट लॉ क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस ऑर्डर एन इंटू टाइम इनवर्स, तो यहाँ से आप किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। साथ में प्रिपेयर ये कर लें मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके एग्जाम्पल, एक्टिवेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, साथ में कोलिजन थ्योरी को प्रिपेयर भी कर लें, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, कुछ इसके मतलब डायग्राम है वो भी देख लें। अरेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट के इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेगा तो दोनों तरफ लॉग लेके ये वाला फॉर्म आ जाएगा, दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट का दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अरेनियस इक्वेशन ये बनेगा, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। इसके बीच में जो कर्व होगा लॉग के और 1/t के बीच में, जिसका स्लोप ये रहेगा, इस स्लोप से आपको स्लोप दिया रहेगा, आर का वैल्यू आपको पता होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछ सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा, ठीक है। साथ में प्रिपेयर टेम्परेचर कोफिशिएंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, 2-3 मेथड है वो लोग आप देख के जाएंगे बहुत अच्छे से। रेट निकालना, फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, या a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, और साथ में हाफ लाइफ टाइम, यानी जो हाफ लाइफ टाइम होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यहीं से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे, तो प्लीज इसको प्रिपेयर कर लें। ग्राफ्स देख सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारे कर्व है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये कर्व है, ठीक है। तो कई बार आपको कर्व प्लॉट करने को नहीं आएगा, बल्कि कर्व दिया हो सकता है और बोलेगा कि कौन से ऑर्डर के रिएक्शन के लिए कर्व है। तो जब आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप कर्व को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो काइनेटिक्स के लिए न्यूमेरिकल कौन से लगाएं, तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जैसे 4.9 है, 4.10 है, ठीक है। उसके बाद 4.16 17 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 तक आप इनको लगा लें, 17 to 20, तो यहाँ से, या फिर ये क्वेश्चन आपके कई बार ये डेटा वाले जो क्वेश्चन है बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन नंबर 24-25 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 to 29 4.30 इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने टिक कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल काइनेटिक्स, बहुत छोटा यूनिट है और बहुत जल्दी प्रिपेयर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट डी एन एब्लॉक एलिमेंट, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत जल्दी आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये भी। तो हालांकि इसमें आपको 2-3 रिवीजन देना पड़ेगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल कुछ इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारे डेटाज आपको याद करने पड़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आपसे मतलब पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर डी ब्लॉक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक में है बट नॉन ट्रांजिशन। तो डी ब्लॉक में पहले ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना है, और कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो आप क्लास 11 से मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्रोमियम, कॉपर एंड पीडी, इनके प्रिपरेशन भी कर लेंगे। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होंगे यहाँ से, वो कौन कौन टॉपिक्स पे बन सकते हैं देखिएगा। एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, एस ब्लॉक के मेटल्स का कम होता है डी ब्लॉक से, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, डेंसिटी, मेटालिक कैरेक्टर के बाद आयनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, ई नॉट सेल पे बनेगा क्वेश्चन, एलॉइज, कैटलिस्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी के जो कुछ चीज़ें बॉक्स में दी हैं वो आपको करनी है प्रिपेयर, साथ में सॉल्व क्वेश्चन के साथ साथ इंडेक्स की प्रॉब्लम भी लगानी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट से कंपाउंड आते हैं, K2Cr2O7
एंड KMnO4। इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी, बस कलर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्रोमेट आयन है और ये डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेट आयन है, ये परमैग्नेट आयन है, ये ग्रीन कलर का, ये पर्पल कलर का। इनके कुछ प्रिपरेशन की रिएक्शंस है NCERT में, वो प्लीज़ उनको 2-3 बार लिख के याद करें। साथ में F ब्लॉक के लिए अपने को लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड पे करना है फोकस केवल। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करके जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे लेंथेनॉइड है +3 +2 +4 भी दिखाते हैं, बट इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, ठीक है। तो गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख लेंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख लेंगे। डिफरेंस क्या होता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सिंपल सा बहुत छोटा टॉपिक है, बट फिर कह रहा हूँ कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत है, डेटा बहुत है, थ्योरेटिकल है, याद करना पड़ेगा। तो अपने मेन जो चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं हो रही उसको रेड मार्क से अंडरलाइन भी कर लें, ताकि आपको दोबारा उसको रिवाइज करने का मौका मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DNF ब्लॉक एलिमेंट। इसके साथ में देखिएगा थोड़ा सा 1-2 चीज़ें छोटी हैं, जैसे कुछ इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स है। कई बार ऐसा होता है MCQ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी ऐड कर देता है जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे जिगलर-नैटा कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली लिंडलार्स कैटलिस्ट ये देख लेंगे, PDBSO4। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, प्रैक्टिकल में आपने किया होगा। टॉलेंस रिएजेंट है, देखिएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। नेस्लर्स रिएजेंट जानते हैं आप लोग, K2HgI4। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, मतलब बेनेडिक्ट का सॉल्यूशन क्या है। तो कई बार ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है, तो इसको भी आप बहुत शॉर्ट में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सो कंप्लीट किया हमने DNF ब्लॉक, प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DNF ब्लॉक। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ लिगेंड अच्छे से कर लेंगे प्रिपेयर, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड डेंटिसिटी, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, EDTA, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुछ एम्बीडेंटेड लिगेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है 1 मार्क का एग्जाम्पल के साथ, साइनो, ठीक है, NO2- CN का माइनस। चिलेटिंग लिगेंड और चिलेट्स क्या होता है, चिलेशन क्या होता है, ये कीलेट्स जो भी है, तो ये आप लोग कर लें प्रिपेयर। चिलेशन या कीलेट्स पर एक क्वेश्चन आपका इस तरह का बन सकता है, देखिएगा जैसे YFeEN3 इज लेस स्टेबल देन FeEDTA नेगेटिव ड्यू टू चिलेशन, ठीक है। तो इस तरह का छोटा सा, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड मालूम होगा तो बहुत आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। IUPAC छोटा सा है, देख लीजिएगा, कैटायनिक और एनायनिक जो लिगेंड्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बेसिस पर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में IUPAC NCERT से एग्जाम्पल अगर कर लेंगे तो काफ़ी है। वर्नर्स थ्योरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। वर्नर थ्योरी क्या करना है, वर्नर थ्योरी में देखिएगा ये क्या बताती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी वो आयनाइजेबल है, जो ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को दिखाएगी। आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, देखिएगा CO कोबाल्ट Cl3 6NH3। इसमें जो Cl3 है वो 1 डिग्री वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रहा है, और ये 6 अमोनिया जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी हमने बोला आयनाइजेबल है। अगर हम इसमें एक्सेस में क्या डालें, AgCl मतलब AgNO3 डालें, तो यहाँ से 3 Cl 3 Ag से मिलेगा, तो 3 मोल AgCl का वाइट PPT बनेगा। तो कितना मोल AgCl का बनेगा, ये इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो वर्नर्स थ्योरी में इतना पढ़ लें, फिर आगे चले VBT की तरफ। VBT के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल आपको समझ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, sp3d और dsp2। 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 या फिर d2sp3, आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल। यहाँ टेट्राइडल है, स्क्वायर प्लेनर है, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो यहाँ से NCERT का इस पेज का देख लीजिएगा क्वेश्चन, पूरा वहाँ पर VBT को एक्सप्लेन किया हुआ है, और उन्हीं में से कॉम्प्लेक्स पूछ लेता है। प्लीज़ कॉपर का कॉम्प्लेक्स एक एक्सेप्शनल है, उसको थोड़ा सा देख के जाइएगा। बाद में बात करते हैं CFT नेक्स्ट। CFT के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछता है, तो आपको स्प्लिटिंग करना आना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये 3 नीचे होते हैं, मतलब T2G नीचे है और EG ऊपर है। और यहाँ टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या हो रहा है कि 2 का सेट नीचे है E और T ऊपर है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, नीचे -0.4 डेल्टा ओ, ऊपर 0.6 डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल के केस में, और टेट्राहेड्रल के केस में 2 नीचे है तो -0.6 नीचे प्लस 0.4 ऊपर है। तो यहाँ से आप CFSC कैलकुलेट कर सकते हैं। और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में ध्यान दीजिएगा पेयरिंग वगैरह का, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ये गैप ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, ठीक है, और वीक फील्ड होगा तो ये गैप कम हो जाएगा। ये जो सेंटर होता है इसको बैरी सेंटर बोलते हैं, आपको पता है ये सब चीज़। आइसोमेरिज्म छोड़ के नहीं जाइएगा। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल सा आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, जैसे आयनाइजेशन है, हाइड्रेट है, कोऑर्डिनेशन है, लिंकेज है। डेफिनेशन नहीं पढ़िएगा, 2 एग्जाम्पल दिए रहेंगे, बोलेगा ये कौन सा आइसोमर है, तो टिक करिए, आगे बढ़िए। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर में कुछ 2-4 PYQ देख लीजिएगा, और NCERT में पीछे 2 एग्जाम्पल है वो देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत मेटल कार्बोनिल्स की तरफ बैक बॉन्डिंग क्या होती है, जैसे कोबाल्ट के केस में है, COM को दे रहा है तो सिग्मा डोनर की तरह भी काम करता है, और जब मेटल CO को देता है तो ये पाई एक्सेप्टर की तरह काम करता है। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, कभी कभी 1 मार्क्स में डाल देता है। तो बेसिक हमारा ये कोऑर्डिनेशन में इतना ही है। तो फोकस एरिया कहाँ है, CFT, VBT और बेसिक, जो आपका जो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन, ये आपका रहेगा बेसिक एरिया ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है, इसमें आपका अप्रोच कैसा रहेगा, देखिएगा कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। जैसे एनोमर्स पूछ लेता है, व्हाट आर एनोमर्स, या फिर 2 एग्जांपल देके मतलब बोल सकता है। तो एनोमर्स क्या होता है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कार्बन ड्यू टू हेमी, मतलब एसिटल या कीटल जो रिंग मतलब फॉर्मेशन होता है। सो द न्यू एसिमेट्रिक कार्बन इज रेफर्ड टू एज ए एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमर्स क्या होते हैं वो देख लेंगे। एपीमर्स भी पूछ सकता है कई बार, एपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स एंड एपीमर्स में। सिमिलरली मोनोसेकेराइड्स एज वेल एज ओलिगोसेकेराइड्स, जैसे मोनोसेकेराइड्स आप जानते हैं, ठीक है। सिमिलरली ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, जैसे सुक्रोज है, माल्टोस है, और ये मतलब लैक्टोज है। स्पेसिफिकली मैंने 3 एग्जांपल मेंशन किए हैं यहाँ पर, क्योंकि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जब आप करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज फॉर्म होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। सिमिलरली माल्टोस है, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होंगे। लैक्टोस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये भी जुड़े रहते हैं। सिमिलर केस है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए LMTS अप्रोच को देख ले, लाइक L फॉर लैक्टोज, माल्टोज, मतलब टेरानोज एंड सुक्रोज, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स भी आपकी बुक में है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ आता है, बट फिर भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो आपके मतलब सिलेबस में है। नेक्स्ट मूव करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की कुछ 5-6 रिएक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन, और फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेंट्रेट HNO3, HI रेड फॉस्फोरस, और 5ACCl और 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर और हॉवर्थ जो स्ट्रक्चर है वो भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो बेसिक अप्रोच, फ्रक्टोज में भी हमें यही करना है अप्लाई, बेसिक चीज़ें फ्रक्टोज के बारे में मतलब पढ़ लेना है। ग्लूकोज और मतलब फ्रक्टोज के जो टेस्ट हैं या फिर उनके स्ट्रक्चरल जो मतलब डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये देखिएगा, कैपिटल डी और कैपिटल एल एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल क्या होता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है, कॉन्फिग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जो आपका मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है उसके रिस्पेक्ट में जो मतलब कॉन्फिग्रेशन होता है वो कैपिटल डी और एल से दिखाते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, OH लेफ्ट और राइट। बट स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या है, कि PPL की डायरेक्ट, PPL को जो रोटेट ही कर देते हैं, मतलब PPL को लेफ्ट को या फिर PPL को राइट को, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास होती है तो या तो लेफ्ट को राइट को रोटेट हो जाती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, बल्कि कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स 2 तरह के हैं, इसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो NCERT खोलेंगे तो वहाँ पर जो इसेंशियल होंगे उनके ऊपर स्टार लगाया होगा, इसेंशियल है, तो कुछ कुछ इसेंशियल इंपॉर्टेंट है वो देख लें। सिमिलरली पेप्टाइड लिंकेज जो मैं बता चुका हूँ आपको, इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट बात करें प्रोटीन के ऊपर, थोड़ा पढ़ के जाइएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी में देखिएगा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड,
ये कई बार पूछा गया है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली फाइब्रस और ग्लोबुलर जो मतलब प्रोटीन है, इनके एग्जाम्पल प्लस बेसिक इनका स्ट्रक्चर है वो देख लें। नेक्स्ट टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए में इनके बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस देख लें, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। साथ में न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, बेस, सुगर, फॉस्फेट क्या होता है उसमें चेक कर लेंगे, ठीक है। साथ में कुछ नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ठीक है, किस में कौन सा एब्सेंट है कौन सा प्रेजेंट है। तो डीएनए आरएनए से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लें इसके बारे में, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ज़्यादा डिटेल इसको करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट बेसिक इसका चेक कर लें। उसके बाद कुछ हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स में आपको क्या करना है, बेसिक आइडिया लेना है, केवल बेसिक आइडिया जो हॉर्मोन्स का होता है कि बेसिकली हॉर्मोन्स क्या होते हैं। अगर आप बेसिक आइडिया भी पढ़ लेंगे तो फीमेल के कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ मेल में हॉर्मोन्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपका हार्मोन क्या करता है, मतलब मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ग्लूकोजन या फिर इंसुलिन भी एक हार्मोन है, या फिर आपका मतलब थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायराइड हार्मोन है, ठीक है, आइडियोनेटेड होता है। तो इस तरीके से हार्मोन्स क्या है, उनका एक बेसिक आइडिया लेना है, एलिमेंट्री आइडिया, जो कि आपके सिलेबस में भी इंडिकेट किया जाता है। तो आप सिंपल एनसीईआरटी से रीडिंग हार्मोन्स की लगा लेंगे, और उसमें कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन्स, कुछ फीमेल हार्मोन्स और उनके फंक्शंस है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन में भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में लिस्ट है, नेम ऑफ मतलब विटामिन है, और उसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, वो देख लेंगे। जैसे मतलब विटामिन ए है, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस है, या फिर B1 विटामिन, B2, B6, B12 है, साइनोकोबालामिन, ठीक है, या फिर विटामिन सी स्कर्बी है, उसका नेम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आपका विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ठीक है, मतलब फैट सॉल्युबल, वाटर जो मतलब सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन का बेसिक आइडिया, फोकस आपका डिफिशियंसी एंड डिजीज पे करेंगे। तो फिर बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन नहीं भी करेंगे, जितना कंटेंट दे दिया इसको बार बार रिवाइज कर लें, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको रेड मार्क से अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट भी कर लें, और उसको बार बार रिवाइज करने के लिए टाइम दें। फाइनली मूविंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन। तो ऑर्गेनिक के रिवीजन आप जब करेंगे स्टार्ट, तो बेसिकली क्या करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं जाएंगे। अब ऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी एनसीईआरटी में आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, इंटर कन्वर्जेंस की तरफ आपको नहीं जाना है। मैंने फिर बोला है क्यों नहीं जाना है, क्योंकि इंटर कन्वर्जन में क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा। तो इंटर कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है कि इंटर कन्वर्जन को छोड़ देना है अभी, और बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ नेम रिएक्शन है, 20 लगभग नेम रिएक्शंस हैं, ये आपको पढ़ लेनी है। जैसे फ्रीडल काफ रिएक्शन है, मतलब फिटिंग, वुड्स फिटिंग, रिमरटाइमन, रोजनवुड, स्टीफन सीटार्ट, क्लेमेंसन, वुल्फ किस्नर, एल्डोल, कैनिजारो, HVZ, हॉफमैन, ब्रोमाइड, कुछ बेसिक से रिएक्शंस हैं, ये आपको कर लेंगे, ठीक है, और बार बार इनको लिख के याद करना है, ठीक है। कुछ केमिकल टेस्ट है जो बताऊंगा अभी, कुछ रिएजेंट बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, जैसे PCC, PDC, जॉन्स, कॉलिंस, NBS, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो वो आपको कर लेने हैं। इतना करने के बाद मैं फिर बोला है अंडरलाइन या हाईलाइट उन टॉपिक्स को कर लेंगे जो आपको याद नहीं हो रहे, ताकि आप उस पर 2-3 बार रिवाइज कर सकें उनको। नेक्स्ट, प्रिपेयर सम थ्योरी पोर्शन इन ऑर्गेनिक विथ एग्जांपल, जैसे एनएंशियोमर्स है, रेसिमिक मिक्सचर्स क्या है, कायरल सेंटर या कायरलिटी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है। सिमिलरली हेलोएल्केन हेलोएरीन्स के अंदर आपको क्या करना है, कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो देख लेने हैं। साथ में कमर्शियल प्रिपरेशन मेथनॉल का करना है, एथेनॉल का करना है, फिनॉल का करना है, इंक्लूडिंग उनमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है। IUPSC का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 1 मार्क्स का होगा, हर चैप्टर के अंदर 2-2 3-3 शॉर्ट एग्जाम्पल हैं, वो करके चले जाएंगे, ठीक है। तो केमिकल टेस्ट करने हैं बहुत अच्छे से, जैसे केमिकल टेस्ट के लिए केमिकल टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको इंटर कन्वर्जन छुड़वाया है। क्यों छुड़वाया है, क्योंकि इंटर कन्वर्जन के ऑप्शन में आपको ABCD वर्ड प्रॉब्लम मिलने वाला है, ये चॉइस में मिलेगा। तो जब चॉइस में आपको ABCD टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और आप इंटर कन्वर्जन नहीं करेंगे, और 20 नेम रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे, और साथ में कुछ केमिकल टेस्ट करने हैं। अब वो केमिकल टेस्ट जैसे मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के बीच में, तो कौन सा टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट है,
तो ल्यूकास टेस्ट की आप एनहाइड्रस ZnCl2 और AlCl3 वो देख लेंगे, मतलब ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट में जो आपका टर्बिडिटी अपेयर हो रही है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो ये कर लेंगे प्रिपेयर। उसके बाद आप क्या करना है, फिनॉल। उसके बाद नंबर 2 आपको देखना है फिनॉल और बेंजोइक एसिड। फिनॉल बेंजोइक एसिड के बीच में डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके जाने हैं, जिससे आपके केमिकल टेस्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है 12.13, गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजोएट, एथेनल प्रोपेनल। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो केमिकल टेस्ट है, एक तो ये कर लेंगे, दूसरा आप ये कर सकते हैं, देखिए गिव वन केमिकल टेस्ट डिस्टिंग बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, यानी कि ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, IUPAC चाहे तो ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो सीधे सीधे आपको बेसिक नेचर भी मिल जाएगा, pKb वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ पे लगाना है। तो बेसिक ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने टिक भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेस्ट अगर आप कन्वर्जन नहीं कर रहे तो 13.9 वाला क्वेश्चन लगा लें जरूर, ABCD। ठीक है, ये देखेंगे तो आपके सारे नेम रिएक्शन भी कवर हो जाएंगे और आपके केमिकल टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। सो प्लीज़ 13.2, 13.4, 13.5 एंड 13.9 ये क्वेश्चन जरूर से प्रिपेयर अच्छे से कर लें। ओके, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए आपको क्या करना है, कुछ 5-7 जो इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। हालांकि इसमें सबसे जो कॉमन है वो SN1 एंड SN2 है, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएंगे। SN1 एंड SN2 रिएक्शन जो कि NCERT में आपको यहाँ दिखेंगे, SN2 मैकेनिज्म एज वेल एज SN1। ठीक है, SN1 SN2 बहुत अच्छे से आप यहाँ तक प्रिपेयर इसको अच्छे से कर लें। इनका ऑर्डर भी आपको मिल जाएगा, ये SN1 SN2 और साथ में एग्जाम्पल 10.6 एंड 10.7। इससे आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि SN1 SN2 मैकेनिज्म कैसे करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म है एल्कीन टू अल्कोहल। ठीक है, ये NCERT में आपको दिखेगा यहाँ पे, एल्कीन टू एथेनॉल, जो कि अल्कोहल एंड फिनॉल में मिलेगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। ये मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर चेक कर लें, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो एक आपका मैकेनिज्म ये है। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो आपका होगा दैट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल से एल्कीन जो कि 443 पे बनेगा, और अल्कोहल टू ईथर जो बनेगा 413 केल्विन पे बनेगा। ठीक है, तो जिसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मैकेनिज्म भी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, एथेनॉल टू एथॉक्सी एथेन, तो ये भी आपका मैकेनिज्म प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। इसके लिए आपको NCERT में जाना है। दिस इज पेज नंबर 348। 348 में आपको मिल जाएगा मैकेनिज्म दिस, तो ये आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। तो HI की रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। HI के साथ जो रिएक्शन होगी उस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, तो इसको आप प्रिपेयर भी कर लें 348 में। ओके, लास्ट मैकेनिज्म इज एथीन फ्रॉम एथेनॉल, सॉरी एथेनल। तो दिस इज एथेनॉल। ओके, तो एथीन बनाना है एथेनॉल से, तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म जाना है NCERT में, पेज नंबर 339। ओके, 339 में दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज एथेनॉल एंड दिस इज एथीन। तो ये मैकेनिज्म भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म। सो अगर आप इतने मैकेनिज्म कर लेते हैं, सो द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस ओनली। सो एट लास्ट ABCD टाइप का जो क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए NCERT में ही आपकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज में जो हम अभी डिस्कस किए थे 12.13 कर लेंगे। उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम के लिए वी हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन। देखिए, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस फ्रॉम फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, तो ये कर लेंगे। ठीक है, और ये कर लेंगे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A दिस फॉर्म्स B, C। ठीक है, तो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम इससे क्लियर हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है, देखिएगा, हाउ
द फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरिड आउट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मैक्सिमम, अगर ज़्यादा आप किसी को करनी है प्रैक्टिस तो यहाँ से कर सकता है 1 2 3। और कुछ क्वेश्चन ये है, आपने पहले भी इससे प्रिपेयर किए होंगे, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और ये एक्सरसाइज तो मैं आपको बता चुका हूँ 13.2 13.4, और ये रहा हमारा 13.5। और फिर भी किसी को मन नहीं मान रहा है कि हमें कन्वर्जन भी करना है, तो ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो ABCD है इससे आपके बन जाएंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर ऑर्गेनिक पार्ट। सो ऑर्गेनिक पार्ट में ABCD आपका ये रहा। साथ में प्लीज़ प्रिपेयर नेम रिएक्शन, बहुत अच्छे से कर लेंगे प्रिपेयर। और साथ में जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है, रीजनिंग क्वेश्चंस है, उनको करेंगे फोकस। और ऑर्गेनिक के अंदर प्लीज़ इलिस्ट्रेशन का यूज़ ज़रूर भी करें, जहाँ पर मतलब रिक्वायर्ड है वहाँ पर आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चंस है तो उसमें डायग्राम आपको बना देने हैं। मान लीजिए कोई भी आपको इफेक्ट पूछ रहा है, तो इंडक्टिव है, मेसोमेरिक है, रेजोनेंस है, तो वेर एवर रिक्वायर्ड यूज़ द दिस, मतलब इलिस्ट्रेशन का यूज़ भी करें। और जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन भी दें, केमिकल रिएक्शन। सो मोर ओवर इतना करने से आपको ऑर्गेनिक कवर हो जाएगा, लगभग इसी के अंडर से आएगा। और साथ में प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना ना भूलें। इतना करने के बाद आप प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कर लें प्रैक्टिस। अब कोई नया सैम्पल पेपर ट्राई ना करें, क्योंकि 3 दिन के अंदर आप बहुत कुछ नया नहीं ये कर सकते। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। सो दिस इज़ फ्रॉम ऑल माई साइड। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।